Hello students, welcome back to my channel. Today we will study the topics of JAM linear algebra. That is, we will discuss about vector spaces over polynomials, dimension of that and some of its examples including subspaces की dimensions भी. We will also study about quotient space and some of its examples. Now let's get started. Now let's discuss about vector space over polynomials. Before that, we will discuss C A comma B is a set of all those functions which are from A comma B to reals continuous. Similarly, C comma infinity A comma B are the functions which are continuous and differentiable infinitely many times. Polynomials जो होते हैं हमारे पास A comma B, collection of all the polynomials is contained in infinity, which in turn is A comma B भी आएगा साथ में C A comma B, set of all the functions which are continuous. And इसमें तो सारे के सारे polynomials आ रहे हैं. इसके अंदर और क्या आएगा सेट P N A comma B. बेसिकली वो सारे polynomials जो डिग्री लेस देन और इक्वल टू n के हैं. लिखते कैसे हम polynomials को a0 a1 इस टाइप के polynomials को a1x up to so on an x is to power n, क्योंकि इनकी डिग्री of f is less than or equal to n, where these ai's belongs to capital R and x is the indeterminate. इसकी बेसिकली बेसिस क्या होती है, यहाँ से पता लग रहा है हमें 1x to so on x is to power n. Hence डायमेंशन क्या होगी n plus 1. किसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन. And therefore dimension of P A B, basically set of all the polynomials, is infinity. क्योंकि उसमें बेसिस क्या आएगी 1x up to so on, चलता रहेगा, रुकेगा ही नहीं. Now let's talk about vector space V of polynomials degree less than or equal to 20 over reals. इसके दो subspaces W1 such that Px belongs to V, P1 is equal to 0, P2 is equal to 0, P3 is equal to 0 and P4 is equal to 0. अपने सबसे पहले बताना है कि ये W1 सबस्पेस होगा. हाँ, ये सबस्पेस होगा. इसमें 0 एलिमेंट तो आ ही रहा है हमारे पास, और वैसे भी इसमें सारे लीनियर कंडीशंस आएंगे, लास्ट में 0 ही है. और कुछ और होता है इसकी जगह तो पॉसिबिलिटी थी कि ये सबस्पेस ना हो, इसलिए W1 सबस्पेस तो है हमारा. इसकी डायमेंशन क्या आएगी हमारे पास, पूरे की डायमेंशन 20 है, 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट कंडीशंस है -4, दैट इज सॉरी इसकी डायमेंशन 21 है, दैट इज 17. Now another subspace of same vector space W2 is equal to Px belonging to V such that P of 2 is equal to 0, P of 3 is equal to 0, P of 4 is equal to 0 and P of 5 is equal to 0. अब इस केस में डायमेंशन सेम आएगी, 4 कंडीशंस है, 21 minus 4 that is 17. इनके सम की डायमेंशन कितनी आएगी हमारे पास, dimension of W1 plus W2 is equal to dimension of W1 plus dimension of W2 minus जो इनकी इंटरसेक्शन की डायमेंशन होगी. अब इसके इंटरसेक्शन में कितने आ रहे हैं, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, 3 कंडीशंस आ रही हैं. तो क्या आएगा बस 21 minus 3 that is 18 minus 18 करेंगे -1 that is 16. Now
let's study about quotient space, where V is a vector space over F, W is a subspace of V, let V belongs to V, then quotient spaces W plus V, cosets है basically ये सारे, small w plus V, where W belongs to capital W. ये right coset है और left coset कैसा दिखेगा यहाँ पास V plus capital W, एलिमेंट होंगे इसके इस टाइप के. सो अब क्वोशिएंट स्पेस क्या आएगी हमारे पास V over W of the form W plus V1 W plus V2 अप टू सो ऑन, जितने भी V के अंदर एलिमेंट्स है वो फाइनाइटली डायमेंशनल है तो फाइनाइट आएगा, या इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट आएंगे. इसमें ऑपरेशन कैसे यूज होता है, बेसिकली एडिशन का होता है W plus V1 प्लस W plus V2, कोई दो एलिमेंट्स होंगे ये इसके अंदर क्वोशिएंट स्पेस के अंदर, फिर W plus V1 plus V2 एंड सिमिलरली स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी इसमें, where alpha belongs to field F, W plus alpha V. Now इन दोनों ऑपरेशंस के अंदर जो हमारा क्वोशिएंट स्पेस है V over W, it forms a vector space which is collection of distinct quotients, और इसकी डायमेंशन क्या आएगी हमारे पास, डिवीजन के सिंबल से थोड़ा सा अंदाजा आज लग जाएगा हमारे पास, डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W, क्योंकि डायमेंशन हमेशा एक होल नंबर होती है ना, इसलिए डिवाइड तो नहीं कर सकते हम उसको, माइनस कर सकते हैं. एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं. V is equal to set of all the n cross n matrices from reals such that trace of A is equal to 0, और इसकी सबस्पेस क्या कंसिडर करेंगे हम, A belonging to V such that A is diagonal. ठीक है, अब W हमारा सबस्पेस होता है V का, ये आप इजीली चेक कर सकते हो. तो हेंस यहाँ पे क्वोशिएंट स्पेस क्या आएगी, V over W डिफाइंड है. डायमेंशन क्या आएगी इसकी V over W की, डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W, डायमेंशन ऑफ V की क्या डायमेंशन आएगी, इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन है हमारे पास, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे एक ही इक्वेशन आती है हमारे पास, और इसकी डायमेंशन कितनी है n² माइनस 1, और अब इसकी कितनी है डायमेंशन ऑफ V की, इसमें दो कंडीशन है हमारे पास, पहले तो ये V को बिलोंग करे तो ये वाली कंडीशन आएगी, और A इज डायगोनल. डायगोनल का क्या मतलब होता है कि इसमें सिर्फ डायगोनल में ही एलिमेंट्स पड़े हैं और ट्रेस 0 है. डायगोनल में कितने एलिमेंट्स होते हैं n, और ट्रेस 0 से में एक कंडीशन आए थे n माइनस 1. हेंस आंसर क्या आएगा हमारे पास n² माइनस 1 माइनस n माइनस 1 विच इज इक्वल टू n² माइनस n. अब हम कभी भी इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्वोशिएंट स्पेस को दैट इट इज कंटेन्ड इन V. क्यों, कि इसमें जो एलिमेंट्स हैं दीज आर एज कोसेट्स, और इसमें जो एलिमेंट्स पड़े हैं दीज आर एज वेक्टर्स. कोसेट्स एंड वेक्टर्स सेम नहीं होते.